We have studied about the methods of preparation of alkenes. In that we have seen the dehydrohalogenation of alkyl halides, right, and dehalogenation of vicinal dihalides, right. If अगर हम vicinal dihalides का dehalogenation करते हैं by treating this vicinal dihalides with zinc metal, we get alkenes, okay. And if we do dehydrohalogenation of alkyl halides using alcoholic potash or alcoholic potassium hydroxide, we get alkenes. And in that also we have discussed Setziff rule, okay, which alkene is major product and which alkene obtained as a minor product, okay. So that we have discussed. Now in this lecture we are going to study the next methods of preparation of alkenes, and that is also very important methods of preparation, because that is also you have in your 12th class, okay. So next method of preparation, that is a type of elimination, and that is dehydration of alcohols. Write down heading dehydration of alcohols. Now it is also very interesting point, okay. Dehydration of alcohols. This is also third type. First we have seen the dehalogenation, that is elimination type. Two halogens on adjacent carbon atom, they are removed, so it's a elimination type of reaction. One molecule split into two another molecules, that is called in short elimination reaction, okay. So what is elimination reaction? Basically elimination reaction is that reaction in which one molecule split into two other molecules, okay. So dehalogenation is also elimination type, because in that we remove halogens from adjacent carbon atom. Dehydrohalogenation is also a type of elimination reaction, because hydrogen and halogen on the adjacent carbon atom, they are removed. Now dehydration of alcohol. Now this is a third type, we can say third type of elimination reaction, that is removal of here. What is mean by dehydration? Loss of water molecule, okay. So loss of hydrogen and hydroxide ion, you can say hydrogen and OH from adjacent carbon atom, that we will see. Now see, suppose I am taking one general reaction here, okay, it is H and it is OH, it is what? Alcohol. So alcohols are those compounds which contains hydroxyl group in their structure, okay. So such alcohols, if they are heated using what? Concentrated sulfuric acid as a catalyst, concentrated H2SO4 as a catalyst, if they are heated, what happens here? Hydrogen from this carbon and OH from this carbon, adjacent carbon. Now the carbon, you know that this carbon is called alpha carbon because it bears functional group, and the carbon which is next to alpha carbon, it is called beta carbon, okay. So hydrogen and OH on adjacent carbon atom, they are removed, and there is a formation of alkene, okay. So this is what? Alkene, and side product is what? Water. Now see here the reaction in which in total what is removed? Water is removed. The reaction in which water is eliminated or removed is called dehydration reaction, okay. So when alcohols undergo catalyzed, this here catalyst used is acid. So acid catalyzed dehydration of alcohols gives us alkene, okay. So this is the general reaction, you can write. Now write down, this is general reaction, okay. Write down this first explanation, I will show you. First of all, write the main reaction, general reaction, okay. This is a general reaction. We can take specific examples, okay. So this is the general reaction. Alcohol on acid catalyzed dehydration gives alkenes, okay. Now we can take different examples of alcohols, and for different alcohols we will get different alkenes, okay. And in the alkenes, you know, according to Setziff rule, that alkene is major product which contains more number of alkyl groups on doubly bonded carbon atoms, okay.
So that example also we will take. ठीक है? So one by one we will take the examples. First of all, write down about the dehydration of alcohols. Removal of H2O molecule is called dehydration. Okay, is called dehydration. Note down general reaction and the definition of this reaction. Okay, what is mean by this dehydration? It is removal of water molecule. Okay, that is called dehydration. So note down this first, then we will take the different examples. Okay, so dehydration means the reaction in which water molecule is removed. That is called what? Dehydration. Okay, and this elimination is specifically is called beta elimination, you can say. Okay, because OH from alpha carbon and hydrogen from beta carbon is removed. Totally water molecule is removed from the alcohol and we get alkene. ठीक है, अब हम डिफरेंट एग्जांपल देख रहे हैं दोस्तों. देखो, write down examples. Now we'll take the different examples. Okay, specific alcohol we will take and we will see which type of alkenes we'll get. Okay, so first example, write down examples. First, I am putting just hydrogen over here. Now it is CH3 CH2OH. It is called ethanol or ethyl alcohol. Ethanol is IUPAC name and ethyl alcohol is the common name. Ethyl alcohol. If ethyl alcohol undergo acid catalyzed dehydration, it gives what? Now see, I am putting hydrogen, 2 hydrogens of the carbon, and on this carbon 2 hydrogens remaining. Water molecule is removed, so the product is what? Ethene, IUPAC name and common name ethylene. Okay, so you can convert ethanol into ethene. What we have to do here? We have to do acid catalyzed dehydration of ethanol. ठीक है, तो इथेनॉल का अगर आपने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन किया तो आपको इथीन मिलेगा. ठीक है, सो राइट डाउन दिस रिएक्शन. वी विल राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट. You can note down this. This is also called dehydration of alcohol. It is also called beta elimination type of reaction because hydrogen from beta carbon is removed. Okay, so beta elimination, it is an example of beta elimination. Okay, very simple reaction. Now we'll see the explanation of this. Okay, so when ethyl alcohol, write down, you can write here, when ethanol or ethyl alcohol undergoes acid catalyzed dehydration, comma, what is formed? Ethene is formed or ethene is obtained. ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. अब आप एक्सप्लेनेशन इजीली लिख सकते हो. आपको मैंने पहले ही बताया है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखो, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, एंड द कंडीशंस that are required for to do the chemical reaction. Okay, it may be acid catalyst, base catalyst,
So catalyst should be written. If catalyst is there, you have to write the catalyst, temperature condition. Okay, some reaction takes place at certain temperature. So this reaction you will have in 12th also. यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि आपको अल्कीन्स मिलते हैं अगर डिहाइड्रेशन किया हमने अल्कोहल्स का। स्पेसिफिक कंडीशन भी है, प्राइमरी अल्कोहल को कितना टेम्परेचर देना पड़ता है वो आपको 12th में डिटेल में है, ठीक है। वहां पे हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे और वहां पे फिर देखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है अल्कीन, ठीक है। सो राइट डाउन दिस रिएक्शन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, देखो इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे आपको अगर 12th में आपको है 95% H2SO4 you have to use here, 95% H2SO4 and 443 Kelvin temperature, okay, ये कंडीशंस है, रिमेंबर। ठीक है, 95 to 96%, 95 96% H2SO4 443 Kelvin temperature. Remember this. You can specifically write this condition, okay? 95 to 96% H2SO4 and what is the temperature? 443 Kelvin. यहाँ पे लिख सकते हो आप. You can use the conditions. You can directly write appropriate conditions. 95% H2SO4 and 443 Kelvin temperature, okay. So you get here alkene, that is ethene. So इथेनॉल के लिए आपको इतना टेम्परेचर लगता है और इतना परसेंटेज आपको H2SO4 लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी years of dehydration, order of reactivity of dehydration is tertiary alcohol undergo fastly dehydration than secondary alcohol which undergoes dehydration fastly than primary alcohol, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल इसलिए आपको कंडीशन ज्यादा लगेगी, 95% स्ट्रॉन्ग आपको H2SO4 लेना पड़ेगा और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, दैट इज 443 केल्विन। सो यू नीड हाई टेम्परेचर एज वेल एज concentration of H2SO4 is also high, okay, so that you must remember. Now we'll see the next example. Write down secondary alcohol, और ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। देखो this carbon is what you can write here, it's a primary alcohol. Now why it is primary alcohol? Now see here, this carbon to which hydroxy group is attached is a primary carbon because this carbon is what, it is attached to only one carbon, so it's a primary carbon, okay। तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता है दोस्तों? देखो that alcohol is primary alcohol which has हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड और अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। अब ये देखो, ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो इट्स अ प्राइमरी कार्बन। अगर OH प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन को अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अगर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो वो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, हम देखेंगे एग्जांपल। और अगर OH टर्शियरी कार्बन को अटैच है तो वो टर्शियरी अल्कोहल हो गया, वेरी सिंपल, ओके। यहाँ पे OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है इसलिए ये इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। व्हाई इट इज प्राइमरी अल्कोहल? बिकॉज OH इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज अ प्राइमरी एज इट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, ओके। सो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन दे गिव अल्कीन, स्पेसिफिकली इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इट गिव्स इथीन, ओके। सो इफ यू सी द रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शियरी को बहुत कम लगेगा आपको टेम्परेचर भी और परसेंटेज ऑफ H2SO4 भी, ठीक है। उसका रीजन मैकेनिज्म है क्योंकि इंटरमीडिएट इसमें आप रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट तैयार होते हैं कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन आपको पता है ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर OH यहां से निकल गया तो क्या होगा, CH3 CH2 प्लस, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको रिएक्शन का, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल में OH निकल गया, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, मैकेनिज्म यानी स्टेप वाइज स्टडी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये देखो रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे
एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कैसा होता है, डिटेल में अगर देखा आपने तो उसको मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये OH पहले ग्रुप निकल जाता है, फिर CH3 CH2OH, ठीक है। ये OH जो है इसको क्या होता है, H2SO4 जो है वो एसिड है तो वो प्रोटॉन देता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो OH और H प्लस ये होता है OH2 प्लस, CH3 CH2 OH2 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस होती है, ठीक है। OH और H OH2 और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक बचती है यहाँ पे, ठीक है। ये दो लोन पेयर थी ऑक्सीजन पे, एक लोन पेयर चली गई, वो O और H में बॉन्ड तैयार हो गया, तो OH2 तैयार हो गई स्पीसीज, और ये पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की तरफ खींचता है, तो फिर माइनस वाटर हम क्या करते हैं, माइनस वाटर, यहां से माइनस वाटर होने के बाद ये देखो CH3 CH2 प्लस प्राइमरी कार्बोकैटायन तैयार होता है, वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और वाटर निकल गया। अब ये लास्ट स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2 प्लस, इसको मैं लिखता हूं देखो HCH CH पॉजिटिव, ठीक है, CH3 CH2 पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और इसमें से माइनस H प्लस होता है, H प्लस निकल जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये तैयार होता है और सेटिस्फाई हो जाती है वैलेंसी कार्बन की, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस निकल गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में देखो मैकेनिज्म है ये पूरे रिएक्शन का, और ये सेम है फॉर एवरी अल्कोहल, द मैकेनिज्म इज सेम, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का, ये प्रोटॉन कहां से आता है, H2SO4 से, कैटलिस्ट से, एसिड से। एसिड इज द स्पीसीज व्हिच गिव्स प्रोटॉन, दैट इज H+, ठीक है। तो ये H+ इसको देता है, और H+ देने के बाद OH को जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है H+, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू H+, ठीक है। तो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म में मैं अगला स्पेसिफिक एक कंपल्सरी एक मैं वीडियो तैयार करूंगा, उसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे, हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, दैट वी विल एक्सप्लेन। तो ये जनरली मैंने बताया आपको, स्टेप वाइज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे मैकेनिज्म इसका होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म का भी हम वीडियो देखेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शियरी की ज्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा है प्राइमरी से। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल इसलिए हमें ज्यादा कंडीशन मिली लगी, ठीक है, 96% H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे लगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में। सेकंड एग्जांपल हम लिख रहे हैं, देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिख रहे हैं हम। अब ये प्राइमरी अल्कोहल का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। This is a primary alcohol, ethanol, that is a primary alcohol. Now we are taking second primary alcohol और एक लेंगे, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर कंडीशन कम है। देखो दोस्तों, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन मोनॉल, CH3 CH2, ये वैरी होंगी कंडीशन, ठीक है। CH2 CH2OH, ठीक है, 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, H और OH निकल गया, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 परसेंटेज लो 75% और 413 केल्विन, 75% H2SO4 और 413 केल्विन यहाँ पे आपको टेम्परेचर लगने वाला है, ठीक है। वाटर निकल गया तो क्या तैयार होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, राइट। द रिएक्शन इन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एंड व्हेन H and OH removed, this carbon carbon single bond becomes double bond, ओके। तो ये ब्यूट 1 इन तैयार हो गया, ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल के लिए। अब ये भी देखो, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल,
प्राइमरी अल्कोहल। क्यों इसको प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे हम? देखो बहुत ही सिंपल है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन को अटैच जो प्राइमरी कार्बन है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन को अटैच है जो प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन तो एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। और अगर प्राइमरी कार्बन को OH अटैच है तो वो अल्कोहल हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सो राइट डाउन द सेकंड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन किया तो हमें ब्यूट 1 इन मिला। ठीक है, ब्यूटेन 1 होगा। अब सेकंड थर्ड एग्जांपल टेक नाउ प्रोपेन 1 to all, you can take प्रोपेन टू ऑल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप देखो थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होता है? तो थर्ड एग्जांपल राइट डाउन, आई एम राइटिंग हियर थर्ड एग्जांपल CH3 CHOH CH3। okay, now this is alpha carbon, this is beta carbon, this is beta carbon। ठीक है, अब यहां पे HOH निकालो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, यहां से भी HOH निकालो तो भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आपने डिहाइड्रेशन किया, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल का, तो यहां पे 60% H2SO4 हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल का 60% H2SO4 हम यूज करते हैं और 373 केल्विन टेम्परेचर यहां पे यूज करते हैं। नोट डाउन दिस 373 केल्विन टेम्परेचर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ सी प्रोपेन टू ऑल इज अ IUPAC नेम, रिमेंबर isopropyl alcohol is common name and it is which type of alcohol? It's a secondary alcohol। अब देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि ये OH ग्रुप उस कार्बन को अटैच है जो दो कार्बन को अटैच है। ठीक है, so OH is attached to secondary carbon, hence it's a secondary alcohol। now for secondary alcohol the condition is changed। now see प्राइमरी के लिए 96-95% H2SO4 लगा था आपको, ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर, लेकिन सेकेंडरी को आप चेंज हो गई कंडीशन, टेम्परेचर भी कम हो गया और परसेंटेज ऑफ H2SO4 भी कम हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन से भी HOH निकालो आप, अल्फा बेटा एलिमिनेशन करो, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा और वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज अ प्रोपीन। ठीक है, IUPAC नेम एंड व्हाट इज द कॉमन नेम? propylene। okay, so write down this reaction when propane to all or isopropyl alcohol undergoes acid catalyzed dehydration, propene is formed। okay, this is the explanation, very simple। जो आपको केमिकल रिएक्शन में दिख रहा है आपको वो एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, this is the third example। now I am taking different and very unique example, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम ले रहे हैं दोस्तों। अब देखो फोर्थ एग्जांपल में लिख रहा हूं जिसमें क्या होता है। देखो आप सेकेंडरी तो अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल यानी सेम कंडीशन है 60% H2SO4 373 केल्विन, लेकिन उसमें दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। देखो फोर्थ एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर CH3, नाउ सी CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, इसका IUPAC नेम अगर आपने देखा तो ये है ब्यूटेन टू ऑल। नंबरिंग यहां से देंगे आप 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सेकंड डिग्री है बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल है, OH is attached to secondary carbon as it is attached to two carbons। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये इसको कॉमन नेम में आप लिखते हैं सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आप देखो ये अल्फा कार्बन है दोस्तों, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अगर मैंने ये H और OH निकाला, कंडीशन सेम, सेकेंडरी अल्कोहल को आपको पता है कंडीशन सेम है। कौन सी कंडीशन हम यूज करते हैं? 60% H2SO4 और 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल बट हियर we get different products।
ओके, देखो अल्फा बीटा ये एलिमिनेशन अगर मैंने किया HOH तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ठीक है 1 2 3 4 दैट इज ब्यूट 1 इन। अब ये देखो समझो मैंने ये H और OH निकाला, ठीक है, ये A टाइप और ये B टाइप, समझो A टाइप क्लीवेज हो गई तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला, और B टाइप अगर लॉस हुआ वाटर का तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सी यू कैन सी हियर, अगर ये H और OH निकल जाते तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। तो ब्यूट 2इन, two possibilities are there here, ब्यूट 2इन। now it's a minor product and it is major product. now you know what is the reason behind it, okay, what is the reason behind it, you know that। अब इसका कॉमन नेम आपको लिखना है, तो ये अल्फा ब्यूटेलिन कहते हैं इसको, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, तो ये भी लिख के लो आप, अल्फा ब्यूटेलिन एंड IPC इसका कॉमन नेम आपको लिखना है, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो इसको बीटा ब्यूटेलिन कहते हैं, ठीक है, बीटा ब्यूटेलिन, कॉमन नेम भी आप लिख के लो इसके, ठीक है, इसको बीटा ब्यूटेलिन कहते हैं और इसको अल्फा ब्यूटेलिन, ओके। अब ये देखो आपको दो प्रोडक्ट मिले, पहले रिएक्शन आप लिख के लो, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट द एग्जांपल हियर। Okay, now according to Setziff rule, that product is a major product which contains, that alkene is major alkene which contains more number of alkyl groups on it। ये situated डबल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन, इस पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है इसमें, इस अल्कीन में, और ये अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखा तो एक साइड में इथाइल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया प्रीवियसली। सो अकॉर्डिंग टू Setziff rule, this but 2 is a major product, that is beta butylene, and but 1 that is alpha butylene is minor product, okay। So in the acid catalyzed dehydration of butane to all, that is sec butyl alcohol, we get two products, but 1 as a minor product and but 2 as a major product, okay। So write down this reaction, very simple and very interesting examples, okay। Now we'll see the third example for tertiary alcohol, fifth example you can say, fifth example for tertiary alcohol, ठीक है। tertiary alcohol के लिए हम example देखते हैं। आप tertiary alcohol, example for tertiary alcohol, suppose I take here CH3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूं CH3OH, ओके। तो ये टर्शियरी कार्बन है दोस्तों, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स, सो इट इज टर्शियरी। ये टोटल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। और अगर IUPAC नेम आपको देना है तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन एज अ पेरेंट अल्केन हियर, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। और कॉमन नेम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट इज व्हाट टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। आप देखो टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन आपको पता है, ये HOH निकल गए समझो। तो यहाँ पे देखो सिर्फ डायरेक्टली कंडीशन एकदम कन्वर्ट चेंज हो जाती है, 20% H2SO4 और 363 केल्विन टेम्परेचर,
बहुत ही कम हो गई। देखो टर्शियरी बहुत इजीली डिहाइड्रेशन दिखाता है, कंडीशन बहुत ही कम है। प्राइमरी के लिए हमने 95-96% यूज किया, ठीक है, H2SO4। सेकेंडरी के लिए 60%, टर्शियरी के लिए 20%। प्राइमरी के लिए 443 टेम्परेचर केल्विन, सेकेंडरी के लिए 373 केल्विन टेम्परेचर, टर्शियरी के लिए 363 केल्विन टेम्परेचर। नाउ व्हाट हैपेंस हियर? नाउ सी, carbon carbon double bond will get here CH3. I am writing CH3, CH3, okay, double bond CH2. I can write here double bond CH2 plus water, okay, CH3 CH3, और ये कार्बन को डबली बॉन्डेड CH2 होगा, ठीक है। तो इसको अगर आपने आईपीसी नेम दिया, आईपैक नेम 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, और इसको अगर ये सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो आपको पता है आइसो होते हैं कंपाउंड को, तो आइसो टोटल कार्बन 4 है, इसलिए कॉमन नेम होता है इसका आइसोब्यूटेलिन, ओके, नोट डाउन दिस। So when tertiary alcohol like tert-butyl alcohol or 2-methylpropane-2-ol undergoes acid catalyzed dehydration, they gives what? 2-methylprop-1-in, that is isobutylene, as a product. Okay. We have seen the lot of examples here, friends. Primary alcohol का हमने example देखा, secondary alcohol का भी हमने example देखा, उसके condition देखे। Secondary alcohols में हमने major और minor product देखे, tertiary alcohol में देखा, वहां पे भी हमने कंडीशन देखी H2SO4. We have seen how much percentage of H2SO4 is changed when we change the alcohol type, primary, secondary, tertiary, and how the temperature also varies for the different alcohols. That also we have seen, and we have seen the different examples of primary, secondary, and tertiary alcohols. Okay. So hope you have understood this dehydration of alcohols, that is beta elimination reaction. ठीक है?